Very good morning to one and all. Welcome to Gyanjati Kanchanpur Rasiklal Vidyalaya online classes. Students, I am Gagan. Today I will teach you environmental studies of standard 3. Student, in the previous class we have already completed 6 chapters. Okay, so today we shall discuss about the air around us, chapter number 7. Okay, the name of the chapter is air around us. Student, you know air means जिसको हम लोग हवा होते हैं. In this chapter you can learn about the air. Okay, what is air, then pollution of air, then ways to keep air clean, how we can keep the air clean, then need of air, why we need air. Okay, then causes of air pollution. What are the causes of air pollution? All these things you can learn in this chapter. Okay, so student, air around us मतलब हमारे चारों ओर जो हवा है. Okay, it is necessary for everyone. No one can live in this world without air. एयर के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकते. Okay, student, in the previous class I have already told you that when we breathe in, कौन सा गैस हम लोग सांस के अंदर लेते हैं? We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Okay, so our earth is surrounded by air. Okay, the blanket of air around the earth is called the atmosphere. Okay, the atmosphere is the mixture of many gases. Okay, water vapor and dust, particles. The gases which are present in the atmosphere are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases. Okay, oxygen is a useful gas which we used to breathe in. Okay student, oxygen is a useful gas which we used to breathe in. Without oxygen we cannot survive for a long time. Okay, on the other hand, in case of carbon dioxide in the atmosphere causes pollution. This pollution is harmful for us. Student, तो ये जो एयर यानी कि हवा जो है, यानी कि इस धरती में चारों ओर हम लोग यानी कि हवा जिसको हम लोग ऑक्सीजन के रूप में भी लेते हैं, ठीक है, और बाहर क्या छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड. हवा के बिना कोई भी नहीं बच सकता है धरती में. ओके, और एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मींस द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ओके, अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड atmosphere. Okay, that is called atmosphere. Okay, तो यह तुम्हारा यानी बहुत सारा गैसेस हमें देखने को मिलता है. कहाँ पे? द एटमॉस्फेयर. ओके, और द एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases. Okay, oxygen is very useful for everyone. No one can live in this world without oxygen. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Okay, and increase of carbon dioxide, this may be the causes of air pollution. Okay, this may be the air pollution or causes of air pollution. So next come to the need of air, यानी कि हवा की जरूरत क्या है. ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ एयर? नीड ऑफ एयर मतलब हमें एयर की क्यों जरूरत है.
ओके, नीड ऑफ एयर। ओके, द नीड ऑफ एयर यानी कि हवा की हमें क्यों जरूरत है। ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ रिक्वायर एयर टू ब्रीथ ऑक्सीजन गैसेस और ऑक्सीजन गैस विदाउट विच ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव। ओके, ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। ओके, इसलिए ये हमें जरूरत है। एयर इज नेसेसरी फॉर अस। ओके, एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन ऑल नीड एयर टू देयर लाइफ। यानी कि प्लांट्स को जरूरत पड़ता है, हम जिसको क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे बोलते हैं। देन एनिमल्स यानी कि जानवरों को जरूरत पड़ता है क्या, हवा की यानी कि एयर की। एयर के बिना प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स कोई भी नहीं बच सकते। ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। ओके, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ओके, ये जो प्लांट्स है जिसको हम लोग पेड़ पौधे होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके, so when they prepare their food at that time they need carbon dioxide to prepare their food. Okay, plants are the sources of getting food for animals and humans. तो हम लोग we depends on plants for our food, हमारा खाने के लिए हम लोग plants के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, और एनिमल्स लोग भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, so plants also make oxygen ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग द फूड। ओके, तो प्लांट्स से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसको हम लोग सांस लेते हैं। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन द एयर। ओके, तो और भी कुछ गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन के साथ यानी मिक्स होकर रहता है। ओके, यानी कि एयर में मिक्स होकर रहता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, ये सब एयर में मिक्स होकर रहता है। ओके, सो ये हवा जो है इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। ओके, नो वन कैन लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट एयर, सो इट इज वी नीड टू यानी कि वी नीड टू द एयर, यानी कि हवा की हमें जरूरत है। Okay, there is a balance of these gases in the air. If this balance is disturbed, तो इसमें बहुत सारा गैसेस मिक्स है, तो इसका एक बैलेंस की जरूरत पड़ता है। आखिर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, इफ द बैलेंस इज डिस्टर्ब देन इट विल बी डेंजरस फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स। यानी कि जितना भी हम लोग लिविंग बीइंग्स है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, सबके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसका बैलेंस को संतुलन रखना हमारा दायित्व है। ठीक है, इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन द बैलेंस। इसको बैलेंस कैसे हम लोग यानी कि इसका बैलेंस को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, जैसे हम लोग ज़्यादातर प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आखिर प्लांट लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा यार, हवा जो है वो हमें शुद्ध हवा मिलेगा, यार पोल्यूशन उतना नहीं होगा, कोई भी पोल्यूशन उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कम टू पोल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि हवा कैसे प्रदूषण होता है। ओके, पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ एयर। स्टूडेंट जानते हो पॉल्यूशन यानी कि हवा कैसे प्रदूषण होता है, कैसे होता है। वी ऑल नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू लिव इन ए हेल्दी लाइफ। हम लोग हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें यानी कि क्लीन और फ्रेश एयर की जरूरत पड़ता है, फ्रेश और क्लीन हवा की जरूरत पड़ता है। ओके, सो वी शुड टेक ब्रीथ इन क्लीन एयर, बट एयर हैज बीन पॉल्यूटेड बाय मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन बहुत सारा काम की वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड हो जाता है, पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषण हो जाता है। मेनी हार्मफुल गैसेस, बहुत सारा यानी कि हार्मफुल गैसेस है, जिससे कि क्या होता है, स्मोक। लोग स्मोक करते हैं, वो कहाँ पे जाता है वो, जैसे सिगरेट, बीड़ी, ये सब जो यूज करते हैं कि नहीं ह्यूमन बींग्स, पीते हैं कि नहीं उसको,
उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं कहाँ पे मिक्स होता है, एयर यानी कि हवा के साथ मिक्स होता है। ओके, तो ये जो एयर पोल्यूशन यानी कि हवा की जो प्रदूषण होता है, क्यों होता है, ये मेनी हार्मफुल गैसेस, स्मोक, डस्ट, ये सब किसमें मिक्स होता है, एयर के साथ मिक्स होता है। ओके, सो इसलिए एयर पोल्यूशन होता है। ओके, देन द एयर पोल्यूशन कॉजेस मेनी डिजीजेस व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड। और ये जो एयर पोल्यूशन की वजह से जो बीमारी होता है, ऐसा कुछ बीमारी होता है जिसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन हवा की जो प्रदूषण होता है उसका कारण क्या है। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ओके, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब यानी कि हवा कैसे प्रदूषण होता है, उसका कारण क्या है। मैनी ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज आर दी कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, हम लोग जितना सारा हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ओके, बहुत सारा ह्यूमन मैन एक्टिविटीज मतलब हम लोगों की द्वारा ये ज्यादातर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ओके, व्हाट आर दे, देयर आर सम पॉइंट्स, ओके, जिसकी वजह से यानी कि जो कि कॉजेस है एयर पोल्यूशन का, तो गिविंग आउट ऑफ मेनी हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक बाय द फैक्ट्रीज इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो फैक्ट्री है स्टूडेंट, फैक्ट्री मतलब जानते हो जहाँ पे बहुत सारा चीजें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो किसमें मिक्स होता है, एयर के साथ मिक्स होता है, यानी कि हवा के साथ मिक्स होता है। वो एक एयर पोल्यूशन का कॉज है, वो एक कारण है। ओके, तो दिस गैस एंड स्मोक मिक्स विद एयर और मिक्स विद द एयर, यानी कि हवा के साथ मिक्स हो जाता है, इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है द स्मोक ऑफ व्हीकल्स सच एज कार, ट्रक्स, देन स्कूटर्स, बसेस पॉल्यूटेड द एयर। और नेक्स्ट कारण क्या है, बाइक चला रहे हैं हम लोग, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, इससे जो धुआं निकलता है वो कहाँ पे मिक्स होता है, वो भी हो जाता है मिक्स के साथ, यानी कि हवा के साथ। ओके, तो बाइक, कार, बसेस, ट्रक, जितना भी व्हीकल चल रहा है उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं किसमें ऐड होता है, यानी कि मिक्स होता है हवा के साथ। तो हवा ऑटोमेटिकली पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषण होगा, तो ये भी एक कारण है, यानी कि एयर पोल्यूशन का। ओके, देन नेक्स्ट है तुम्हारा ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ओके, कॉज एयर पोल्यूशन। कहीं कहीं पर आग लग जाता है, जैसे जंगल में आग लग जाना, उससे भी बहुत सारा धुआं निकलता है, उसके साथ प्लांट्स का भी वहाँ पे क्षति होता है, ठीक है, यानी कि प्लांट्स भी बहुत सारा जल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी एक तुम्हारा एयर पोल्यूशन का कारण है। ओके, देन और भी एक कारण होता है कि थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन द ओपन पोल्यूशन ऑन द एयर। बहुत सारा वेस्ट थिंग जो होता है हम लोग बाहर में फेंक देते हैं, आगे नहीं, जिससे क्या होता है वो बदबू आता है, वो सब किसमें मिक्स होता है, एयर के साथ मिक्स होता है। ओके, तो ड्यू टू दिस मेनी हार्मफुल जर्म्स आर मिक्स्ड विद द एयर। तो जो हम लोग गार्बेज यानी कि वेस्ट थिंग हम बाहर में फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा जर्म्स होते हैं, वही जर्म्स इसमें भी यानी मिक्स होते हैं, एयर के साथ मिक्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये भी एक कॉजेस है। ओके, देन मेनी नेचुरल disasters are also causes of air pollution. Okay, then next तुम्हारा ये जो तुम्हारा नेचुरल डिजास्टर, इसके वजह से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो these are the points which makes the air pollution and which is the causes of air pollution, जिसके वजह से हवा यानी कि प्रदूषण होता है। ओके, देन ways to keep the air clean, यानी कि हवा को कैसे हम लोग क्लीन रख सकते हैं।
ओके, वेस्ट टू कीप द एयर क्लीन। नेक्स्ट है तुम्हारा वेस्ट टू कीप एयर क्लीन। ओके, यानी कि हवा को हम लोग कैसे क्लीन रख सकते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप वी शुड टेकन, देन वी कैन कीप द एयर क्लीन। ओके, तो कौन कौन सा वे यानी कि रास्ता अपनाने से हम लोग हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग बींग्स, और ये जो एयर पोल्यूशन ये जितना भी लिविंग बींग्स है इस धरती में यानी कि इन द वर्ल्ड सबके लिए हार्मफुल है। ओके, वी ऑल नीड पोल्यूशन लेस एयर टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो पोल्यूशन लेस यानी कि हवा को पोल्यूशन लेस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ओके, देन फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस अवे फ्रॉम मेनी डेंजरस डिजीजेस। आखिर हम लोग फ्रेश और क्लीन एयर आखिर सांस में लेंगे तो हमें बहुत सारा बीमारी से बच सकते हैं। ओके, वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम मेनी डिजीजेस इफ वी टेक फ्रेश एंड क्लीन एयर। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द एयर पोल्यूशन फ्री। तो एयर यानी कि हवा को पोल्यूशन फ्री रखना की यानी कि काम हमारा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर दैट हाउ वी मेक द एयर पोल्यूशन लेस। ओके, तो उसको कैसे पोल्यूशन लेस और पोल्यूशन फ्री कैसे करेंगे। ओके, तो कुछ वे है, जो फर्स्ट वे है वी शुड फॉलो सम वे टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। तो कुछ रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम लोग एयर को क्लीन कर सकते हैं। वो वे है वी शुड नॉट बर्न प्लास्टिक। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट निकलता है यानी प्लास्टिक सब को हम लोग इकट्ठा फेंक देते हैं और उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो गैसेस निकलता है उसको इसमें ऐड होता है हवा में, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो हमें प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। ओके, देन वुड एंड गार्बेज बिकॉज बर्निंग ऑफ दिस थिंग्स क्रिएट हार्मफुल गैस। और लकड़ी भी जलाते हैं उससे भी गैस निकलता है, ठीक है, उससे भी जो धुआं निकलता है, इसी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें क्या करना है, प्लास्टिक चीज़ें जितना भी है उसको हम लोग क्या करना है, नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। देन वुड यानी कि लकड़ियों को भी बहुत सारा नहीं जलाना है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस हो रहा है और उसके इसमें मिक्स होता है, एयर के साथ मिक्स होता है, इसीलिए ये सब हमें अपनाना चाहिए। ओके, देन वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स ऑल्सो, और हम लोग प्लास्टिक बैग्स भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। ओके, देन वी शुड नॉट थ्रो आउट गार्बेज इन द ओपन, और हम लोग जो गार्बेज यानी कि वेस्ट थिंग होता है उसको हम लोग बाहर इधर उधर फेंक देते हैं, उसको इधर उधर नहीं फेंक कर क्या करना चाहिए, एक तो यानी कि डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन में डालने से क्या होगा, इधर उधर गंदा नहीं होगा, ठीक है। सो वी यूज बिन्स फॉर गार्बेज, और गार्बेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, बिन्स यूज करना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग डस्टबिन बोलते हैं। देन वी शुड नॉट बर्स्ट फायर क्रैक्स और क्रैकर्स, इट क्रिएट एयर पोल्यूशन टू वेल एज नॉइज पोल्यूशन। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग मानेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, ओके, तो ये सब वे आखिर हम लोग अपनाएंगे, जैसे प्लास्टिक को नहीं जलाना है, वुड यूज नहीं करना है, उसको नहीं जलाना है, ठीक है, एंड गार्बेज थिंग्स को इधर उधर नहीं फेंकना है। ये सब चीज़ें आखिर हम लोग अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ओके, एंड फैक्ट्रीज मस्ट बी सिचुएटेड फार फ्रॉम द पॉपुलेशन, और ये जो फैक्ट्रीज होता है, ये फैक्ट्रीज को ये यानी कि बाहर में रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि गांव के सामने यानी कि टाउन के सामने में उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, देन द स्मोक एंड वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज मस्ट बी कंट्रोल्ड, देन वी कैन कंट्रोल द
air pollution, and we can keep the air clean. Okay, so we should always check on smoke which is given out by our vehicles. और हम हमेशा हम लोग का व्हीकल्स को हम लोग चेक करना चाहिए कि ये पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, हम लोग डेली चेक करना चाहिए उसको. ठीक है, द व्हीकल शुड बी सर्विस टाइम टू टाइम. व्हीकल्स यानी कि उससे जो धुआं निकलता है उसको आखिर हम लोग टाइम टू टाइम आखिर सर्विस नहीं करेंगे, सर्विस नहीं देंगे उसको, तो उससे बहुत सारे गैसेस यानी कि उससे गैस निकलता है जो कि बहुत हार्मफुल है हमारा यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए. और एयर पोल्यूशन होता है उसका यानी कि जो धुआं निकलता है. इसीलिए उसको हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस कराना चाहिए. ओके, जिसके वजह से हम लोग पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं. ओके, देन वी शुड यूज CNG टू रन आवर व्हीकल्स. और हमारा जो व्हीकल्स चलाते हैं उसमें हम लोग CNG यूज करना चाहिए. CNG मतलब स्टूडेंट जानते हो, CNG का फुल फॉर्म जानते हो स्टूडेंट? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. C में कंप्रेस्ड, नेचुरल, G में गैस. ओके, तो ये CNG यूज करना चाहिए जो हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं उसमें. ठीक है, इससे क्या होगा? इससे पोल्यूशन फ्री यानी कि हाँ पोल्यूशन फ्री हो सकता है. एयर पोल्यूशन यानी कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा इससे CNG यूज करने से. ओके, देन वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हम जितना हो सके उतना हमें प्लांट लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए. समझ में आ रहा है कि जितना हो सके उतना हम लोग प्लांट्स लगाना चाहिए. प्लांट्स एंड ट्रीज मेक द एयर क्लीन. और ये जो हवा को यानी कि क्लीन और फ्रेश रखने के लिए ट्री की जरूरत पड़ता है. इसीलिए हम जितना हो सके हमें ट्री लगाना चाहिए. ओके, दे मेक ऑक्सीजन व्हाइल मेकिंग फूड. और जब ये पेड़ जो हैं प्लांट जब खाना बनाते हैं एट दैट टाइम दे मेक ऑक्सीजन. ओके, व्हिच वी यूज्ड एज ब्रीदिंग. हम जिसको हम लोग सांस के अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स लगाना चाहिए एयर को यानी कि हवा को पोल्यूशन लेस करने के लिए. देन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ इन. तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए ये जरूरी है. ओके, विदाउट ऑक्सीजन नो वन कैन लिव इन दिस वर्ल्ड. प्लांट्स आल्सो कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. और प्लांट्स को भी जरूरत पड़ता है कौन सा गैस का? कार्बन डाई गैस का, जिससे वो अपना खाना बना सकता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो हार्मफुल गैस फॉर अस. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है, कब हार्मफुल है? जब ये बढ़ जाता है. ओके, तो प्लांट्स ब्रेक्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कौन बना सकता है? प्लांट्स. इसीलिए हमें प्लांट ज़्यादातर लगाना चाहिए जितना हो सके उतना. उसको नहीं कट करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग? उसको काटते जा रहे हैं, है कि नहीं? जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्लांट्स यानी कि जंगल के भी कमी होने लगा है. यानी कि धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्या होगा? हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा यानी कि इफेक्ट होगा. इसीलिए प्लांट्स लगाना हमें जरूरी है. वी शुड नॉट कट द ट्री बिकॉज दे आर आवर ट्रू फ्रेंड. इसको हम ट्रू फ्रेंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं. देखो, दे कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे गिव्स अस ऑक्सीजन व्हिच वी ब्रीथ इन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच द प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड. ओके, सो एयर इज नेसेसरी फॉर एवरीवन स्टूडेंट. एयर सबके लिए जरूरी है. No one can live in this world without air. Okay, once again I want to tell you that the blanket of air around the earth is called atmosphere. आखिर क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, what is atmosphere? You can write that the blanket of air around the earth is called atmosphere.
ओके, देन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, समझ में आया? देन द मेन गैस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कुछ मेन गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं। कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। देन वी ऑल नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू फिट आवर बॉडी, यानी कि हम फिट और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें क्लीन और फ्रेश एयर की जरूरत पड़ता है। ओके, तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड स्टूडेंट, और ये जो क्वेश्चन आंसर है तुम्हें PDF में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।